नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड समेत 4 स्कीमों का किया आगाज़। KTR की रेवंत रेड्डी के डाउस के दावों पर तनकीद, हक़ाइक़ और अमली इक़दामात का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में जय संविधान जलसे से रेवंत रेड्डी का खिताब, वज़ीर आज़म मोदी पर की तनकीद, आइन बचाने की अवाम से की अपील। बंडी संजय ने गैदर को पद्मा अवार्ड देने की दरख्वास्त की मुखालिफत, हुकूमत के फैसले पर नज़रसानी का किया मुतालबा। हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लगने का वाक़े के बाद एक नौजवान लापता, तलाश जारी। उत्तराखंड रियासत में आज से एकसा सिविल कोड नाफिज। ACB की तेलंगाना के 2 मुकामात पर कार्रवाई, 2 अफसरान गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी फलाह बहबूद के लिए 4 नई स्कीमों का आगाज़ किया। कोडंगल में मुनक़िदा तक़रीब में रैतु भरोसा, इंद्रम्मा आत्मीय भरोसा, इंद्रम्मा मकानात और नए राशन कार्ड्स की तक़सीम स्कीमों का आगाज़ किया गया। इस मौके पर 734 अफराद को रैतु भरोसा के चेक और इंद्रम्मा मकानात के तहत 11.80 करोड़ रुपए के चेक्स तकसीम किए गए। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर रही है और आवाम से किए गए वादे पूरे कर रही है। उन्होंने कहा, गरीब लोग नए राशन कार्ड्स के मुंतज़िर थे, जबकि किसान और मजदूर सरकारी मदद के मोहताज थे, जिन्हें इन स्कीमों से फ़ायदा होगा। పేదవాడికి ఇంకా ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది। ఆ ఆలోచనతోనే గతంలో రైతు భరోసా 5,000 ఉంటే 10,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఉంటే ఈసారి ఇంకా ధరలు పెరిగినాయని ఈనాడు రైతు భరోసా పథకం కింద ఎకరాకు 12,000 రూపాయలు సంవత్సరానికి ఇవ్వాలని ఈ రోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడం। ప్రతి సంవత్సరం దాదాపుగా 20,000 కోట్ల రూపాయలు ఈనాడు రైతు భరోసా పథకం కింద ప్రతి ఎకరాకు 12,000 రూపాయలు ఇవ్వాలని ఆ పథకాన్ని ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉండే దాదాపుగా 70 లక్షల మంది రైతులకు కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం చంద్రవంచ నుంచి ఈరోజు ఆ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించుకున్నాం। ఈరోజు జనవరి 26 బ్యాంకులకు హాలిడే ఉన్నది। రాత్రి 12 గంటల తర్వాత ప్రతి రైతుకు, రాష్ట్రంలో ఉన్న వ్యవసాయ భూమి ఉన్న ప్రతి రైతుకు రాత్రి 12 గంటల తర్వాత ప్రతి ఎకరాకు 6,000 రూపాయలతోని మీ ఖాతాల్లో మీ నగదు టకీమని పడే విధంగా ఈరోజు కార్యక్రమాన్ని తీసుకున్నాం। ఇంత గొప్ప కార్యక్రమం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే లక్షలాది మంది రైతాంగ కుటుంబాలను ఆదుకోవాలన్న కార్యక్రమం ఇవాళ కొడంగల్ శాసనసభ నియోజకవర్గం చంద్రవంచ గ్రామం నుంచి ప్రారంభించుకోవడం మనందరికీ సంతోషం। ఈరోజు రాష్ట్రం మొత్తం చంద్రవంచ వైపు చూస్తుంది అంటే రైతుల కళ్ళల్లో ఆనందం మనం ఈ వేదిక మీద నుంచి చూడాల్సిన అవసరం ఉన్నది। అదేవిధంగా పేదలు, నేను పాదయాత్ర చేసినప్పుడు సమ్మక్క సారలమ్మ జాతర నుంచి ములుగు నియోజకవర్గంలో పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి ఆ రోజు ఖమ్మము, వరంగల్, ఆదిలాబాదు, అదేవిధంగా నిజామాబాదు, కరీంనగర్ ఈ ప్రాంతాలలో తిరుగుతున్నప్పుడు తండాలలో, గూడాలలో, మారుమూల పల్లెల్లో పేదోళ్ళు వచ్చిండ్రు। వాళ్ళందరూ అడిగినరు, సార్ భూమి ఉన్న వాళ్ళకే రైతు భరోసా ఇస్తున్నారు, భూమి ఉన్న వాళ్ళకే ఉచిత కరెంట్ ఇస్తున్నారు, భూమి ఉన్న వాళ్ళకే అన్ని చేస్తున్నారు, భూమి లేని మాలాంటి పేదలను మీరు ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది, మా కష్టాలు తీరవండి అని భూమి లేని పేదలు వచ్చి కలిసిండ్రు। ఆలోచన చేసినాం, మంత్రివర్గంలో చర్చించినాం। అందుకే ఈనాడు భూమి లేని నిరుపేదలకు ఉపాధి హామీ పథకంలో పనిచేస్తున్న వాళ్లకు ఖచ్చితంగా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు ప్రతి కుటుంబానికి ఇవ్వాలని ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా కార్యక్రమాన్ని ఇవాళ చంద్రవంచలో ఈ గ్రామ పంచాయతీలో ప్రారంభించుకున్నాం। దాదాపుగా ఇందిరమ్మ ఆత్మీయ భరోసా కార్యక్రమం 10 లక్షల కుటుంబాలకు మేలు జరగబోతుంది। ఇవాళ భూమి లేని నిరుపేదలను
ముఖ్యంగా దళితులను, గిరిజనులను, ఆదివాసీలను, బలహీన వర్గాలను ఆదుకోవడానికి పథకం తీసుకొచ్చినాం. వాళ్ళ ఖాతాలో కూడా సంవత్సరానికి 12,000 రూపాయలు వేయబోతున్నాం. వాళ్ళ నగదు కూడా రాత్రి 12 గంటల తర్వాత బదిలీ కాబోతున్నదని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేయదలుచుకున్నా. అదేవిధంగా ఇందిరమ్మ ఇల్లు, పేదవాళ్ళకి ఇందిరమ్మ ఇల్లు అనగానే డాక్టర్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గుర్తొస్తాడు. ఆనాడు 2004 నుంచి 2014 వరకు ప్రతి పేదవాడికి, ఇల్లు లేని ప్రతి వాడికి ఇల్లు కట్టుకోవడానికి ఆనాడు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇచ్చినాం. 2004 నుంచి 2009 వరకు, 2009 నుంచి 2014 వరకు నేను గురునాథ్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేలుగా ఉన్నప్పుడు ఈ నియోజకవర్గంలోనే రాష్ట్రంలో అత్యధికంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు తీసుకున్న నియోజకవర్గం ఉందంటే దాదాపుగా 36,000 ఇండ్లు ఈ నియోజకవర్గంలో మేమిద్దరం ఆనాడు పేదలకు ఇప్పించినాం. साबिक़ वज़ीर IT व BRS के वर्किंग सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के दावों पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर वाकई वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम डावोस में 1.78 करोड़ लाख रुपए की सरमायाकारी तेलंगाना में आ रही है तो वो वज़ीर आला को मुबारकबाद पेश करेंगे। KTR ने कहा, अगर आप रियासत के लिए मज़ीद सरमायाकारी लाते हैं तो हमें खुशी होगी, आप हमसे ज़्यादा काम करें। कहा, लेकिन हकीकत यह है कि 2024 में आपने 40,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी का दावा किया था, इसमें से 40 पैसे की भी बुनियाद नहीं रखी गई। KTR ने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि ये सरमायाकारियाँ कब ज़मीन पर आएंगी और तेलंगाना के नौजवानों को कब रोज़गार मिलेगा। उन्होंने कहा कि महज दावे करने से अवाम के मसाइल हल नहीं होंगे, बल्कि हकीकत में काम दिखाना होगा। उन्होंने कहा, तेलंगाना के अवाम सिर्फ वादे नहीं बल्कि अमली इक़दामात चाहते हैं। నువ్వు పెట్టుబడులు తెస్తే అందరికంటే ఎక్కువ సంతోషపడేది మేము. ఎందుకంటే మేము తెలంగాణ మా బిడ్డ, ఇది మా రాష్ట్రం, మేము తెచ్చిన రాష్ట్రం అనే భావనతో ఉండేటోళ్ళం. తెలంగాణను ప్రేమించేటోళ్ళం. తెలంగాణకు మాకంటే ఒక 2 పనులు ఎక్కువ చేస్తే సంతోషపడేటోళ్ళం, సంబరపడేటోళ్ళం. దమ్ముంటే చూపెట్టు. ప్రజలు అడుగుతున్నారు. 1,78,000 కోట్లను బిల్డపిచ్చుడు కాదు. 2024లో ఇట్లే చెప్పినావు నువ్వు, నీ ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క. 42,000 కోట్ల పెట్టుబడులు తెచ్చినాం అని గవర్నర్ ప్రసంగంలో, బడ్జెట్ ప్రసంగంలో మీరు చెప్పినారు. ఇలా ప్రజలు మీ మీద ఎందుకు అనుమానపడుతున్నారు? ఎందుకంటే నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? నేతి బీరకాయలు నెయ్యి ఉంటుందా? మైసూరు బోండంలో మైసూరు ఉంటుందా? బొంబాయి రవ్వల బొంబాయి ఉంటుందా? ఉంటుందా? మరి రేవంత్ రెడ్డి 6 గ్యారెంటీలు ఏమన్నా దానికి గ్యారెంటీ ఉన్నదా? అందుకే ప్రజలు అనుమానపడుతున్నారు. నేతి బీరకాయల నెయ్యి ఎంత ఉంటుందో కాంగ్రెస్ పార్టీ 420 హామీలలో కూడా వాస్తవం గంతే ఉంటుంది. కాబట్టి నువ్వు మొదటి సంవత్సరం తెచ్చిన పెట్టుబడులు కూడా ఒక్కటి కూడా రాలేదు. కాబట్టి అప్పుడు కూడా 40,000 కోట్లను ఉదరగొట్టినా 40 పైసలు కూడా రాలేదు. కాబట్టి నేను ఎవడు నమ్మతలేడు. నమ్మకపోతే నువ్వు వచ్చి పెద్ద పెద్ద హోర్డింగులు పెట్టుకొని ప్రభుత్వ ఖర్చుతోని, ప్రజల పైసలతోని హోర్డింగులు పెట్టి నీ ముఖం పెట్టుకుంటే పెట్టుకో. అలా కేసీఆర్ బొమ్మ ఎందుకు, నా బొమ్మ ఎందుకు? పని లేక మా ఇద్దరు ఫోటోలు పెట్టి మాకేదో అజీర్తి అయిందట, మాకు అరుగుతలేదట. రేవంత్ రెడ్డి గారికి నేను చెప్తున్నా, చేతనైతే ఈ 1,78,000 కోట్లు అనేది అయితే నరుకుతున్నావో ఎప్పటి లోపల ఇవి ట్రాన్స్లేట్ అయితే, ఎప్పటి లోపల మా పిల్లలకు ఉద్యోగాలు వస్తాయో చేతనైతే చెప్పు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను. ఇంకెక్కువ తీసుకురా, సంతోషపడతాం, సంబురపడతాం. నిజంగానే నువ్వు చెప్పింది వాస్తవం అయితే నీకు సన్మానం కూడా చేస్తాం. అది కూడా చెప్తున్నాను. చేతనైతే మాకంటే ఎక్కువ చేసి చూపెట్టు. मध्य प्रदेश में जय संविधान के जलसे से खिताब करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आज़म मोदी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मोदी हुकूमत आइन में तब्दीली की साजिश कर रही है और मुल्क में पसमानदा तबक़ात और दलितों को मिलने वाले रिजर्वेशन को ख़त्म करने की कोशिश में मसरूफ़ है। रेवंत रेड्डी ने कहा, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार आइन पर हमला कर रहे हैं और इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने राहुल गांधी की तारीफ़ करते हुए कहा कि जैसे महात्मा गांधी ने बरतानवी साम्राज्य के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने बीजेपी को ब्रिटिश जनता पार्टी करार दिया और कहा कि राहुल गांधी का मिशन मुल्क के आइन और जमहूरी इक़्तिदार का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वो बीजेपी की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मुसलसिल लड़ाई लड़ रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने अवाम से भी अपील की कि वो आइन को बचाने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का साथ दे। ये लड़ाई लड़ेंगे। मैं साफ 2 ही बात कहना चाहता हूँ, ये चुनाव नहीं है,
ये लड़ाई है, ये लड़ाई संविधान बचाने वालों के बीच में, संविधान बदलने वालों के बीच में ये लड़ाई चल रहा है। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने तब से बार बार मोदी जी कोशिश कर रहा है संविधान को बदलने के लिए, मगर राहुल गांधी जी ने शुरुआत से मोदी जी को पहचाना। अगर मोदी जी का ताकत बढ़े तो मोदी जी संविधान बदलने के लिए पूरा कोशिश जारी रखेंगे। इसीलिए पहले दिन से राहुल गांधी जी ने मोदी जी को रोकने के लिए कोशिश किए। इस बार मोदी जी बहुत ताकत से वो कोशिश कर रहा है। मोदी जी को मैं इतिहास में पढ़ा था, गजनी मोहम्मद हिंदुस्तान को लूटने के लिए, हिंदुस्तान हासिल करने के लिए बार बार कोशिश किए। वैसा ही गजनी मोहम्मद जैसा आज मोदी जी ने संविधान बदलने के लिए, आरक्षण रद्द करने के लिए मोदी जी कोशिश कर रहा है। उनका कोशिश कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जब अंग्रेजों के, ब्रिटिशों को हरा के महात्मा गांधी जी ने इस देश को बचाया, आज उनका ही ब्रिटिश जनता पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से चल रहा है, वो ब्रिटिश जनता पार्टी को हराने के लिए अपने भाई राहुल गांधी जी ने खड़ा हुआ है, अपना सिपाही बनकर आज जो कोशिश कर रहे हैं। हम सब लोग राहुल गांधी जी के मदद में, हम लोग सब लोग इस लड़ाई में शामिल होना है और संविधान को बचाने के लिए हम लोग सब कोशिश करना है। इसीलिए ये दो परिवारों के बीच में लड़ाई है, एक गांधी जी का परिवार, दूसरे गाडसे के परिवार। गाडसे के परिवार के तरफ से मोदी जी लड़ रहा है, गांधी जी के परिवार के तरफ से राहुल गांधी जी ने लड़ रहा है। इसीलिए हम सब लोग गांधी जी परिवार बनकर राहुल गांधी जी को मदद देना है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनेंगे, इस देश में संविधान को बचाएंगे, संविधान से सरकार चलाने के लिए हम सब कोशिश करेंगे। आप सब लोग यहाँ आकर कांग्रेस पार्टी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ दिया हुआ है, सबको धन्यवाद कहते हुए मैं यहाँ पर आपसे गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस के साथ हम लड़ेंगे और साथ में रहेंगे और कांग्रेस के साथ रहकर। वज़ीर ममलिकत बंडी संजय ने गदर को पद्मा अवार्ड देने के इम्कान पर सख्त रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि वो नक्सली तहरीक का हिस्सा रहा है और इसकी सरगर्मियों की वजह से बीजेपी कारकुनों की हलाकतें और कई पुलिस अहलकार इनकाउंटर में मारे गए। उन्होंने कहा, गदर के ख़िलाफ़ कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी ने तहक़ीक़ात की है और इसके माजी के किरदार को देखते हुए पद्मा अवार्ड देने की बात सरासर नाकाबिल कबूल है। कहा, ऐसे शख्स को पद्मा अवार्ड देना लोगों की कुर्बानियों की तौहीन होगी जिन्होंने मुल्क और रियासत की सलामती के लिए अपनी जानें दी है। उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि पद्मा अवार्ड के लिए ऐसे लोगों के नाम भेजे जाएँ जो वाकई उन्होंने मुल्क या समाज के लिए खिदमत अंजाम दी हो। बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि रियासती हुकूमत अवार्ड्स की सिफारिशात में सियासी मसलिहतों को तरजीह दे रही है और वह ऐसे अफराद के नामों पर गौर कर रही है जो मुतनाज़िया माजी रखते हैं। उन्होंने कहा, रियासती हुकूमत को चाहिए कि वो इन लोगों के नाम भेजे जो माशरे के लिए काबिल क़द्र खिदमत अंजाम दे चुके हैं, ना कि ऐसे अफराद के नाम जो माजी में नक्सली सरगर्मियों में मुलव्विस हो। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రతిపాదనలు పంపే సమయంలో ఎవరి పేరు పంపాలో వాళ్ళ పేరు పంపాలి. కేంద్రం ఆలోచిస్తుంది. మీరు పంపిన పేర్లను ఇస్తారా? ఇది అన్నీ ఆలోచిస్తారు. పంపేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా పంపాలి, మంచి వ్యక్తుల పేరు పంపాలి. వీళ్ళు మంచి వ్యక్తులు కాదంటలే, నేను పద్మశ్రీ అవార్డు వచ్చేటువంటి స్థాయి వ్యక్తులను పంపాలి, పంపితే ఇస్తారు. ఎట్టిస్తామన్నా, ఎట్టిస్తాం, గద్దరికి ఎట్టిస్తాం చెప్పండి అనే భావజాలం ఏంది? ఎంతమంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలను మర్డర్ చేసిన వ్యక్తులు ఆయన ఎట్టిస్తాం? మేము పక్కా అయ్యాం. మా కార్యకర్తలను చంపితే, మా కార్యకర్తలు చంపిన కార్యకర్తలను పాటలు పాడినటువంటి వ్యక్తి గద్దర్. అనేక మంది పోలీసులను ఎన్కౌంటర్ చేసిన విషయంలో గద్దర్. ఎట్లిస్తాం? మీరు వంశం ఇస్తాం ఏంది అవార్డ్స్? భయపడే ప్రసక్తి లేదు, వెనుకపోయే ప్రసక్తి లేదు. వందల మంది భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలు నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం భారత్ మాతా కీ జై అని చెప్పి ఆందోళన చేస్తుంటే నక్సల్స్ భావజాలం గద్దర్ మా కార్యకర్తను హత్య చేయించిండు.
ఎన్ఐఏ వచ్చి ఎంక్వైరీ చేసింది గద్దర్ గారి మీద. అనేక మంది పోలీసులను ఎన్కౌంటర్ పేరుతో మర్డర్ చేసిండు. అటువంటి వ్యక్తిని ఏ విధంగా పంపుతారు ఇవాళ? ఇది ఈ రాష్ట్రము మరి పోయినసారి వచ్చినాయి, పుట్టుబడి వచ్చింది తెలంగాణకు. అప్పుడు ఏమన్నారు మరి? అప్పుడు ఈ రాష్ట్రము ఆ రాష్ట్రము, ఈ ప్రాంతము ఆ ప్రాంతం అని చెప్పి ఎటువంటి ఆలోచన ఉండదు. ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వాలి, ఈ రాష్ట్రానికి ఇవ్వద్దని ఎక్కడ ఉండదు. ఇవన్నీ మళ్ళీ వస్తుంది. తెలంగాణ సెంటిమెంట్ను మీరు రగిలిసిన తెలంగాణ ప్రజలు అన్నీ తెలుసు, ఎవరు తెలంగాణ సెంటిమెంట్తో లాభపడ్డారు. शहर हैदराबाद के हुसैन सागर में इतवार की रात 2 कश्तियों में आग लगने के वाक़े के बाद शहर का एक नौजवान लापता हो गया है। इस नौजवान की शनाख्त अजय के तौर पर की गई है। पीर की सुबह अजय के अरकान ख़ानदान हुसैन सागर के पास पहुँचे और पुलिस हुकाम को इत्तला दी कि वो गुज़िश्ता रात से लापता है। उन्होंने इसे तलाश करने के लिए सर्च ऑपरेशन की दरख्वास्त की। इस दरख्वास्त के बाद हुकाम और पुलिस ने 2 टीमों के साथ झील में मुश्तरका ऑपरेशन शुरू किया। ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद टीमें तैनात की जाएंगी। दस्तियाब मालूमात के मुताबिक अजय के साथ आने वाले दोस्त महफूज हैं। इतवार की रात हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लग गई। ये आग मुबैना तौर पर निकलिस रोड पर पीपल प्लाजा में मुनक़िदा भारत माता महा आरती प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर पटाखे फटने की वजह से लगी थी। इस हादसे के वक्त कश्तियों में 15 अफराद सवार थे। आग एक कश्ती से दूसरी कश्ती तक फैल गई, जिससे 2 कश्तियों को शदीद नुकसान पहुँचा। उत्तराखंड में एक्साइज सिविल कोड यूसीसी 26 जनवरी 2025 से नाफिज हो गया है। वज़ीर आला पुष्पर सिंह धामी ने इसे रियासत के लिए तारीख़ी इक़दाम करार देते हुए कहा कि ये 3 साल पहले आवाम से किए गए वादे की तकमील है। उन्होंने कहा यूसीसी का मकसद मुख्तलिफ़ मज़ाहिब और तबक़ात के दरमियान मसावी हुकूक़ फ़राहम करना है। बीजेपी के मुताबिक यूसीसी शादी, तलाक़ और विरासत व दीगर सिविल उमूर में यकसा क़ानूनी मदद फ़राहम करेगा। बीजेपी ने कहा कि इसका मकसद माशरती इंसाफ, क़ानूनी यकसानियत और समाजी हम आहंगी को फ़रोग़ देना है ताकि तमाम शहरियों को मसावी हुकूक़ हासिल हो। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पीर के रोज़ निज़ामाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के स्पेशल ऑफिसर का चार्ज संभाल लिया है। हुकूमत ने कलेक्टर को खुसूसी ऑफिसर मुकर्रर करने के अहकामात जारी किए थे। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर दिलीप कुमार और दीगर ओहदेदारों ने कलेक्टर को गुलदस्ता पेश करते हुए इनका इस्तकबाल किया। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी के हुकाम ने पीर के रोज़ ज़िले खम्मम में एक वार्ड ऑफिसर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। वार्ड ऑफिसर ने खातून दरख्वास्त गुजार से राशन कार्ड की प्रोसेसिंग और इंदिरा हाउस स्कीम के तहत दरख्वास्त की मंजूरी के लिए 2500 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। खातून की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एसीबी एहलकारों ने वार्ड ऑफिसर विनोद को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। एसीबी ने कहा कि ऐसी रिश्वत के वाक़यात के ख़िलाफ़ आवाम को एसीबी से रुजू होना चाहिए। पुराने शहर हैदराबाद के बल्लागुड़ा रोड पर कल एक अफसोसनाक हादसे में ताहिर नामी नौजवान का इंतकाल हो गया। एमबीटी के तर्जुमान अमजदुल्ला खान खालिद मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और अफसरान से बातचीत की। अमजदुल्ला खान के मुताबिक बल्लागुड़ा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना होने की वजह से यह हादसा पेश आया, जिसमें नौजवान ताहिर का इंतकाल हो गया। 45 मिनट तक एम्बुलेंस ना पहुंचने पर मरहूम की लाश को ऑटो रिक्शा के जरिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जो अफसोसनाक हादसा हुआ है टाइटन प्लाजा के एकदम सामने हाईवे पे, बच्चे का नाम ताहिर अली है और बच्चे की जो बाइक थी, मेस्ट्रो बाइक थी, जो जाते जाते सड़क पे से रोड पे से जो हादसा हुआ, कोई डीसीएम वाला उसको टक्कर मार के जो गया, बच्चे का स्पॉट पे डेथ हो गया। जब डेथ होने के बाद जब देखे तो काफी पब्लिक बढ़ रही, तो हमको भी फोन आया तो हम आए। आने के बाद जो पब्लिक को जो क्लियर करना था क्लियर करे,
और जो बच्चे की बॉडी थी PS उस्मानिया हॉस्पिटल को भेज दिया यहाँ पे। और रही बात जो जो इस रोड पे जो हादसे हो रहे, रिक्वेस्ट ये है कि जो रोड का जो काम चल रहा उस काम को कोई ना रोके, बस और काम रोड का जो जल्द से जल्द हमारे जो काम रोड बड़ी हो रही है उसको करिए। क्यों बोले तो आज से 5-6 दिन पहले भी एक हादसा हुआ हमारे पास, एक बच्ची और उनके वालदा का इंतकाल हुआ यहाँ पर, वो इससे उनका भी एक्सीडेंट में डेथ हुआ यही रोड पे। और ये रोड पे काफी हादसे हो रहे हैं। आप लोग से भी एक रिक्वेस्ट है कि इस रोड पे जो भी जाएंगे तो संभल के जाइए, रोड का काम चल रहा है यहाँ पे, आप लोग से रिक्वेस्ट। और यहाँ पर जिस तरीके से हालात बन रहे हैं एक्सीडेंट्स के, आप लोग भी जो है पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि पुलिस जो कॉपरेट कर रही, मगर की स्पॉट पे पुलिस आ रही है, मगर के पुलिस का काम है थोड़ा सा पब्लिक को भी थोड़ा ये करिए, और जितना हो सकता रात के टाइम कम से कम गाड़ी भगाने की कोशिश करिए। बस 20 से 24 साल के बीच में कुछ बच्चा हो। जहरा नगर का है, उसके RC बुक पे एड्रेस देखे तो जहरा नगर पे ग्रीन कलर की मेट्रो। ACB के हुकाम ने जिले मेदक के मनोहराबाद मंडल में तैनात असिस्टेंट इंजीनियर CH कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया। असिस्टेंट इंजीनियर ने शिकायत कुनिंदे से 3 फेज DTR के तहत बिजली की सप्लाई बहाल करने के लिए 30,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। शिकायत कुनिंदे ने इब्तदाई तौर पर इसे 10,000 रुपये की रकम अदा की थी, जबकि बाकी 20,000 रुपये की रकम लेते वक्त ACB ने असिस्टेंट इंजीनियर को गिरफ्तार कर लिया। ACB हुकाम ने इस वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी और कहा कि बदउनवानी में मुलव्विस अफराद के ख़िलाफ़ सख्त क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवाम से अपील की गई है कि वो किसी भी किस्म की बदउनवानी की शिकायत फ़ौरी तौर पर ACB हुकाम को करें ताकि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जा सके। रियासत तेलंगाना भर में यौम जमहूरिया बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद के विजयनगर कॉलोनी में वाक़ई तेलंगाना शिप एंड गोट डेवलपमेंट कॉरपोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर B सुब्बा रेड्डू ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तेलंगाना लाइव स्टॉक डेवलपमेंट एजेंसी के CEO डॉक्टर CH मल्लेश्वरी के अलावा स्टाफ ने इस तकरीब में हिस्सा लिया। तेलंगाना के सूर्यापेट में एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कोंडा कृष्णा नामी नौजवान की लाश मूसी के किनारे मिली। नामालूम अफराद ने इसे पत्थरों से मारकर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक कृष्णा ने 6 माह पहले मोहब्बत की शादी की थी और शुबा है कि यही कत्ल की वजह हो सकती है। पुलिस ने केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है और मकतूल के घर वालों से तफसीलात मालूम की जा रही है। रियासत तेलंगाना में यौम जमहूरिया इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाई गई। शहर हैदराबाद के पुराने शहर के इलाके फलकनुमा असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर ऑपरेशन के दफ्तर में भी यौम जमहूरिया तकरीब मनाई गई। ADE फलकनुमा के राजू ने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर स्टाफ की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए यौम जमहूरिया की मुबारकबाद दी। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने नए राशन कार्ड समेत 4 स्कीमों का किया आगाज़। KTR की रेवंत रेड्डी के डाउस के दावों पर तनकीद, हक़ाइक़ और अमली इक़दामात का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश में जय संविधान जलसे से रेवंत रेड्डी का खिताब, वज़ीर आज़म मोदी पर की तनकीद, आइन बचाने की अवाम से की अपील। बंडी संजय गैदर को पद्मा अवार्ड देने की दरख्वास्त की मुखालिफत, हुकूमत के फैसले पर नज़रसानी का किया मुतालबा। हुसैन सागर में 2 कश्तियों में आग लगने का वाक़े के बाद एक नौजवान लापता, तलाश जारी। उत्तराखंड रियासत में आज से एकसा सिविल कोड नाफिज। ACB की तेलंगाना के 2 मुकामात पर कार्रवाई, 2 अफसरान गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए।
हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा इंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।